السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاہد رحمانی۔ آج مورخہ 30 ستمبر ہے۔ پیش ہے دوربین کی تازہ ترین پیشکش۔ آج دوربین کے اہم موضوعات ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ہونے والے ایک خودکش بم دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 52 افراد ہلاک جبکہ 50 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ صوبائی حکومت نے اس حادثے پر سہ روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ تفصیلات میں دیکھیے تازہ صورتحال۔ مدھیہ پردیش میں پھر انسانیت شرمسار کرنے والا معاملہ سامنے آیا۔ بدماشوں نے ایک نوجوان کو نیم اوڑیا کر بیلٹ اور لات گھوسوں سے بری طرح پیٹا، پھر اس کے گلے میں کتے کی طرح پٹی ڈال کر بھونکنے پر مجبور کیا۔ تفصیلات میں دیکھیے اس خبر کی پوری کہانی۔ خواتین ریزرویشن بل یعنی ناری شکتی وندن ایکٹ کو صدر دروپدی مرمو سے منظوری مل گئی ہے، یعنی اب یہ ایکٹ قانون بن چکا ہے۔ یہ بل 20 ستمبر کو لوک سبھا اور 21 ستمبر کو راج سبھا نے پاس کیا تھا۔ اس بل سے خواتین کو کیا فائدے ملیں گے، تفصیلات میں ضرور دیکھیے۔ اسکون نے مینکا گاندھی کو 100 کروڑ کا حق عزتی کا نوٹس بھیجا ہے۔ حال ہی میں مینکا گاندھی نے مذہبی تنظیم اسکون پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ گایوں کو قصائیوں کے ہاتھ فروخت کرتی ہے۔ پنجاب میں بی جے پی رہنما منپریت بادل کی تلاش میں 6 ریاستوں میں ویجیلنس ٹیم کی چھاپہ ماری جاری ہے۔ 64 دن سے لاپتہ منپریت بادل کے خلاف مبینہ بے ضابطگیوں کے معاملے میں گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا گیا تھا۔ دہلی میں آلودگی کی بڑی وجہ پرالی کو تلف کرنے کے لیے 3 سالوں سے پوسا بائیوٹک کمپیوٹرز کا مفت اسپرے کیا گیا ہے۔ گزشتہ سال 4400 ایکڑ پر اسپرے کیا گیا تھا۔ تفصیلات میں دیکھیے اس سلسلے میں دہلی حکومت کا پورا ایکشن پلان۔ انڈونیشیا کی حکومت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ای کامرس یعنی سامان کی خرید و فروخت سے متعلق ایک نیا ضابطہ جاری کیا ہے۔ اس ضابطے کی پوری تفصیلات میں آج کی دوربین میں ضرور دیکھیے اور سمجھیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے حریف ڈونالڈ ٹرمپ پر سخت نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ فی الوقت امریکہ میں کچھ بے حد خطرناک ہو رہا ہے۔ تفصیلات میں دیکھیے ان کی نکتہ چینیوں کا تفصیلی خلاصہ۔ نئی دہلی میں واقع افغانستان کا سفارت خانہ بند ہو گیا ہے۔ سفارت خانے نے بھارتی حکومت کو مطلع کیا ہے کہ طالبان حکومت کے پاس وسائل کی کمی ہے، اس کے پیش نظر اسے مجبوراً بند کیا جا رہا ہے۔ آج کی دوربین میں دیکھیے مزید تفصیل۔ کینیڈا کے وزیر دفاع کے بعد اب خود وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھارت کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی بات کہی ہے۔ جسٹن ٹروڈو نے بھارت کو ایک ابھرتی ہوئی معیشت قرار دیا، تاہم انہوں نے بھارت سے نجر قتل معاملے میں تعاون کی اپیل کی۔ آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھنے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ آپ فکر و نظر اردو کا پروگرام دوربین دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ہونے والے خودکش بم دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 52 افراد ہلاک جبکہ 50 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ صوبائی حکومت نے اس حادثے پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر جنرل آف پولیس منیر احمد نے نیوز ایجنسی راٹرز کو بتایا کہ بمباری نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کی گاڑی کے قریب خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ دھماکہ ضلع مستون کی ایک مسجد کے قریب ہوا، جہاں لوگ پیغمبر اسلام کی پیدائش کے دن کی مناسبت سے ایک جلوس میں شرکت کے لیے جمع ہوئے تھے۔ دنیا کے اکثر مسلم ممالک میں اسلامی کیلنڈر کے مطابق 12 ربیع الاول کے روز پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منایا جاتا ہے اور پاکستان میں اس دن عالمی تعطیل ہوتی ہے۔ ابھی تک کسی بھی فرد یا گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ کل عدم تحریک طالبان پاکستان نے بھی اس حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ اس دھماکے کے زخمیوں کو مستون کے قریب ہسپتالوں میں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بھگتی نے اس دھماکے کو انتہائی گھناؤنا فعل قرار دیا۔ جولائی میں صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک مذہبی سیاسی جماعت کے ایک اجتماع میں خودکش بم دھماکے کے نتیجے میں 40 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ خیال رہے کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکر اور وزیر داخلہ سرفراز کا تعلق بھی صوبہ بلوچستان سے ہے۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب نگراں وفاقی اور صوبائی حکومتیں ملک میں آئندہ سال جنوری میں ہونے والے انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ مدھیہ پردیش میں کمزور طبقے کے ساتھ بدسلوکی اور مار پیٹ کے معاملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں۔ دلتوں کو پیشاب پلائے جانے اور زد و کوب کیے جانے کے کئی معاملے گزشتہ کچھ ماہ میں سامنے آ چکے ہیں۔
ताजा मामला मध्य प्रदेश के दत्ता जिला का है, जहां बदमाशों ने एक नौजवान को नींद उड़िया कर बेल्ट और लात घूंसों से खूब पिटाई की। उसके बाद बेबस नौजवान के गले में कुत्ते की तरह पट्टा डालकर उसे भौंकने के लिए मजबूर किया। इस वाकये की वीडियो सामने आई है जो मध्य प्रदेश में शर्मसार होती इंसानियत का सबूत पेश कर रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में दिखाई दे रहा है कि दो बदमाश मिलकर एक नौजवान को नींद उड़िया किए हुए हैं और बेल्ट से उसकी पिटाई बेरहमी के साथ कर रहे हैं। इस वाक़े के बारे में पुलिस ज़राए के हवाले से मीडिया में कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं। इसमें बताया जा रहा है कि मुतासिरा नौजवान एक कत्ल के केस में गवाह है और पिटाई करने वाले अशखास उन नौजवान पर बयान बदलने के लिए दबाव बना रहे थे। जब नौजवान ने बयान बदलने से इनकार कर दिया तो बदमाश उसे पकड़कर उत्तर प्रदेश के सुनसान इलाके में ले गए और बुरी तरह बेल्ट से पीटा। वीडियो में नौजवान की जिस जगह पर पिटाई की गई है वो दत्ता और झांसी के दरमियान मौजूद जंगल की बताई जा रही है। नौजवान को पकड़कर बदमाश जंगल में ले गए थे और वहां उसे कपड़े उतरवा दिए, फिर बेल्ट और लात घूंसों से पिटाई शुरू कर दी। नौजवान रहम की भीख मांग रहा है लेकिन बदमाशों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वीडियो में आ रही आवाज को गौर से सुनने पर पता चलता है कि बदमाश नौजवान का गला काटने की बात भी कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मुलजिमीन के बारे में पता करने के लिए पूछताछ शुरू की है। बताया जाता है कि पुलिस की बदमाशों तक रसाई हो गई है और उसने पुलिस को बताया कि वाकया 1 साल पुराना है। दत्ता कोतवाली के टीआई विजय सिंह तोमर ने कहा है कि मुतासिरा नौजवान ने इस मामले की शिकायत नहीं की। अभी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए इसके अहले खाना से राब्ता किया गया है। मुतासिरा शख्स कहीं बाहर है और उसके आने का इंतजार किया जा रहा है। खवातीन रिजर्वेशन बिल यानी नारी शक्ति वंदन एक्ट को सदर द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिल गई है, यानी ये एक्ट कानून बन चुका है। ये बिल 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा ने पास किया था। उसके बाद इसे सदर की मंजूरी के लिए भेजा था ताकि ये कानून बन सके। इस तरह जुमा 29 सितंबर की तारीख इस बिल को कानून बनाने की तारीख साबित हुई। इस कानून के नाफिज के बाद खवातीन को लोकसभा और रियासती असेंबलियों में 33% रिजर्वेशन मिलेगा। जब ये बिल पार्लियामान से मंजूर हुआ तो सदर द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि ये सनफी इंसाफ के लिए हमारे दौर का सबसे ज्यादा तब्दीली लाने वाला इनकलाब होगा। कानून को मुकम्मल तौर पर लागू करने के लिए जरूरी है कि इसे रियासतों से मंजूरी हासिल हो। उसके बाद अगला मरहला मर्दमशुमारी का है जो बहुत अहम है। आखिरी मरहले हदबंदी है। इन रास्तों से गुजर कर ही यह कानून मुस्तहिक लोगों को उनके हकूक फराहम कर सकेगा। कानून बनने के बाद अगला और अहम मरहला रियासतों से भी मंजूरी हासिल करना है। आर्टिकल 368 के तहत अगर मरकज के किसी भी कानून से रियासतों के हकूक पर कोई असर पड़ता है तो उस कानून को बनाने के लिए कम से कम 50% असेंबलियों की मंजूरी लेनी होगी। यानी ये कानून पूरे मुल्क में उसी वक्त लागू होगा जब कम से कम 14 रियासतों की असेंबलियों से इसे पास करेंगी। भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामान मेनका गांधी ने हाल ही में इस्कॉन पर संगीन इल्जामात आयद किए थे और उन्होंने कहा था गायों को कसाई के हाथ फरोख्त करते हैं। इस्कॉन ने इस इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए मेनका गांधी को 100 करोड़ रुपए का हत्या-ए-इज्जती का नोटिस भेजा है। इस्कॉन कोलकाता के नायब सदर राधा रमन दास ने कहा है कि इस्कॉन के अकीदतमंद और हामी इन तौहीन आमेज काबिल मुजम्मत और बदनीयती पर मबनी इल्जामात से बहुत अफसरदा है। वो इस्कॉन के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा के खिलाफ इंसाफ दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ख्याल रहे कि वायरल वीडियो में मेनका गांधी कहती हुई नजर आ रही है कि इस्कॉन की तरफ से गायों को फरोख्त किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मजीद इल्जाम आयद करते हुए कहा कि इस्कॉन मुल्क के सबसे बड़ी फरौड तंजीम है। वीडियो में मेनका गांधी ने कहा कि इस्कॉन गौशाला कायम करती है और इसलिए कि हुकूमत से जमीन का बड़ा टुकड़ा हासिल करती है और लामहदूद मुनाफे भी कमाती है। उन्होंने हाल ही में उनकी अनंतपुर यानी आंध्र प्रदेश गौशाला का दौरा किया था तो वहां एक भी गाय अच्छी हालत में नहीं थी। गौशाला में बछड़ा नहीं था, जिसका मतलब यह है कि उन सबको फरोख्त कर दिया गया है। इस्कॉन ने मेनका गांधी के इल्जामात को झूठा और बेबुनियाद करार दिया। तंजीम की जानिब से कहा गया कि वह साबिक मरकजी वजीर के बयान से हैरान है। इस्कॉन के कौमी तर्जमान ने एक बयान में कहा है कि इस्कॉन ने दुनिया के कई हिस्सों में गायों के तहफ़्फ़ुज़ में पेश कदमी की है, खास तौर पर ऐसे इलाकों में जहां गाय का गोश्त लोगों की अहम खुराक है।
पंजाब विजिलेंस टीम बीजेपी रहनुमा और पंजाब के साबिक वजीर खारजा मनप्रीत बादल की तलाश में 6 रियासतों में छापामारी कर रही है। छापों के लिए टीमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और राजस्थान पहुंच चुकी है। दरअसल मंगल को ही एक अदालत ने मनप्रीत बादल के खिलाफ पंजाब के भटिंडा जिला में जायदाद की खरीदारी में मुबैना बेज़ाब्तगियों के मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। यह मनप्रीत सिंह बादल के खिलाफ लक आउट सर्कल जारी करने के बाद सामने आया है। विजिलेंस को शुबा है कि मनप्रीत मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क जा सकता है। मनप्रीत बादल की जानिब से पेशगी जमानत के लिए दायर दरखास्त पर गुज़िश्ता रोज समाअत की गई। विजिलेंस टीम ने साल 2021 में साबिक एमएलए संगरूप चंद संगला की शिकायत की बुनियाद पर जांच शुरू की थी। मॉडल टाउन में प्लान की खरीदारी के मामले में विजिलेंस टीम गुज़िश्ता कई माह से कार्रवाई कर रही थी। मनप्रीत बादल गुज़िश्ता 64 दिनों से लापता है और उन पर कार्रवाई का खतरा मंडला रहा है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में फिजाई आलूदगी से निपटने के लिए विंटर यानी मौसम सरमा का एक्शन प्लान तैयार किया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत के इक़दाम से शहर में आलूदगी की शिद्दत में कमी वाक़ हुई है। हुकूमत ने आलूदगी के हॉट स्पॉट की निशानदही की है। इस सब के लिए अलग मंसूबा बनाया गया है। आलूदगी की एक बड़ी वजह पराली की मसला को हल करने के लिए पूसा बायोटो कंप्यूटर्स का गुज़िश्ता 3 सालों से मुफ्त स्प्रे किया जा रहा है। गुज़िश्ता साल 44 एकड़ पर स्प्रे किया गया था, जबकि इस साल 5000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर मुफ्त स्प्रे किया जाएगा। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में 13 हॉट स्पॉट की निशानदही की गई है। फिजाई आलूदगी से निपटने के लिए नोडल अफसरान को तैनात करने का मशवरा दिया गया है। इसके अलावा हुक्काम को हिदायत पर सख्ती से अमल करने और 15 निकाती प्लान पर अमल दरामद को यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि धूल के सबब पैदा होने वाली आलूदगी को कम करने के लिए तामीराती मकामात पर नजर रखने के लिए 551 टीमें तश्कील दी गई है। 82 रोड शॉपिंग मशीनें लगाई जा रही है और पानी के छिड़काव के लिए 530 मशीनें लगाई जा रही है। आलूदगी को कम करने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। गाड़ियों से होने वाली आलूदगी को कम करने के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। 10 साल पुराने डीजल गाड़ियों और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर पाबंदी को सख्ती से नाफिज करने के लिए 358 टीमें तश्कील दी गई हैं। दिल्ली में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए शजरकारी मुहिम के तहत 75% दरख्त लगाए गए हैं। इसका दूसरा मरहला 15 अक्टूबर से शुरू होगा। इंडोनेशिया की हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ई कॉमर्स यानी सामान की खरीदो फरोख्त से मुतालिक एक नया ज़ाब्ता जारी किया है, जिसमें छोटे कारोबारियों को पहुंचने वाले नुकसान का हवाला देते हुए कहा गया कि ऐसे छोटे ताजिर अपनी बेशतर अशिया ऑफलाइन फरोख्त करते हैं। मुल्क के छोटे पैमाने के खुर्द फरोश ताजिर एक तवील अरसे से शिकायत कर रहे थे कि ऑनलाइन फरोख्त में इजाफे की वजह से उनकी आमदनी बहुत मुतासिर हुई है और हुकूमत ने इसी के मद्देनजर ये ज़ाब्ता नाफिज किया है। इंडोनेशिया के वज़ीर तिजारत जुल्फ़िकार हसन ने बुध के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कारोबार से ताल्लुक माहौलियाती नज़्म में छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारी इदारों को मुनसिफाना, सेहतमंद और फायदेमंद मुकाबला करने के काबिल बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। पाबंदी का इतलाक इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होता है जो बराह रास्त ऑनलाइन स्टोर्स के साथ मुंसलिक होकर काम करते हैं, जैसे कि चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक। इंडोनेशिया में टिकटॉक शॉप्स सबसे बड़ी ऑनलाइन मंडियों में से एक रही है। उन्होंने कहा है कि वबाई मर्ज के बाद से लोगों में कुव्वत खरीद कम हुई है, इसलिए हमारी फरोख्त भी कम है। इंडोनेशियन हैप्पीनोडो से ताल्लुक रखने वाले हेडी दजारिया का कहना है कि उनकी एसोसिएशन हुकूमत के फैसले की भरपूर हिमायत करती है। दजारिया ने कहा है कि मार्केट पर मुनहसिर ताजरों के लिए ऑनलाइन खुद फरोश के साथ मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने DW को बताया कि ऑनलाइन शॉपिंग खरीदारों के लिए आसान और ज्यादा सुस्ती पड़ती है। ताहम उन्होंने मजीद कहा है कि उन्हें यकीन है कि इंडोनेशियाई सारिफीन तजर्बा हासिल करने के लिए डेवलपमेंटल स्टोर्स में भी जाना चाहेंगे। दजारिया का ख्याल है कि अगर ऑनलाइन दुकानें भी कानूनी इजाजतनामा हासिल करे और ऑफलाइन दुकानों की तरह वो भी जरूरियात को पूरा करें तो इंडोनेशिया में ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटें एक सेहतमंद कारोबारी माहौल में एक साथ
रह सकती है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अपने हरीफ डोनाल्ड ट्रंप पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि फिलवक्त अमेरिका में कुछ बहुत ही खतरनाक हो रहा है। वाज़ेह है कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप सन 2024 में रिपब्लिकन पार्टी में सदारती उम्मीदवार नामजद होने के दौर में अपने दीगर हरीफों के मुकाबले में सबसे आगे हैं। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप धोखाधड़ी में मुलव्विस करार जुमेरात के रोज एरिजोना में खिताब के दौरान बाइडेन ने ट्रंप के हामियों पर कानून की हुक्मरानी, आजाद सहाफत और जमहूरियत पर हमला करने का इल्जाम लगाया। डोनाल्ड ट्रंप जेल जाने वाले पहले अमेरिकी सदर बन गए। बाइडेन ने कहा कि हम सबको याद रखना चाहिए, जमहूरियतों को आखिर में राइफल से मरने की जरूरत नहीं है। वो उस वक्त मर सकती है जब लोग खामोश हो जाते हैं, जब वो खड़े होने में नाकाम रहें या जमहूरियत को लायक खतरात की मजम्मत नहीं करते, क्योंकि लोग मायूस, थका हुआ और अलग थलग महसूस करने के सबब जो चीज अपने लिए सबसे कीमती होती है उसी को खो देने के लिए तैयार हो जाते हैं। चीनी हैंकरों ने अमेरिकी महकमा खारजा से हजारों ईमेल्स चुरा ली। वाज़ेह है कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नारा दिया था MAGA, यानी अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएंगे। बाइडेन ने इस नारे का हवाला देते हुए कहा कि इस पर अब कोई सवाल नहीं। नई दिल्ली में वाक़ अफगानिस्तान का सिफारत खाना बंद हो गया है। सिफारत खाने ने भारतीय हुकूमत को मुत्तला किया है कि तालिबान हुकूमत के पास वसाइल की कमी है। इसी के पेश नजर उसे मजबूरन बंद किया जा रहा है और इल्जाम लगाया गया कि मुतअद्दिद दरखास्तों के बावजूद नई दिल्ली ने इसकी कोई मदद नहीं की। भारतीय मीडिया में शाया रिपोर्टों के मुताबिक अशरफ गनी की साबिका अफगान हुकूमत की तरफ से तैनात किए गए सफीर जई गुज़िश्ता कई माह से लंदन में हैं, जबकि सिफारत खाने के दीगर ओहदेदारों ने अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत कई मगरबी ममालिक में सियासी पनाह हासिल कर ली है। इत्तलात के मुताबिक अफगानिस्तान के सिफारत खाने की तरफ से इस हफ्ते भारतीय वज़ारत खारजा को एक गैर दस्तखत शुदा खत भेजा गया था, जिसमें इशारा दिया गया था कि सिफारत खाने को सितंबर के आखिर तक बंद कर दिया जाएगा। और इस खत में बिलखुसूस इस बात का जिक्र किया गया था कि मुतअद्दिद दरखास्तों के बावजूद नई दिल्ली ने न तो किसी तरह का ताउन किया और न ही इन तकरीबन 30,000 अफगान तलबा को वीजा जारी करने में मदद की, जिन्हें सन 2021 में भारत का सफर करना था, लेकिन उसके पास सफरी दस्तावेज नहीं थे। खत में यह भी कहा गया कि जून 2022 में भारत के काबुल में अपना मिशन खोलने के बाद साबिका इस्लामिया जमहूरिया अफगानिस्तान से वफादारी का अहद करने वाले अफगान सिफारत खाने को सिफारती एहतराम और दोस्ताना अहमियत नहीं दी गई। नई दिल्ली के अफगान सिफारत खाने ने खत में भारतीय वज़ारत खारजा से मिशन की इमारत पर अफगानिस्तान का तिरंगा परचम लहराने की इजाजत की दरखास्त की थी। इसमें कहा गया कि ये परचम अफगान की इस जमहूरी हुकूमत की नुमाइंदगी करता है, जिससे तालिबान हुकूमत ने माजूर कर दिया था और जिसे अभी तक दुनिया के किसी भी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया है। भारतीय वज़ारत खारजा ने ताहम इस खत के मुतालिक खबरों पर सरकारी तौर पर कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया। अफगानिस्तान में अगस्त 2021 में अशरफ गनी हुकूमत के माजूल हो जाने और मुल्क पर तालिबान के कंट्रोल के बाद भारत ने भी वहां अपना सिफारत खाना बंद कर दिया था। ताहम उसने बाद में इंसानी इमदादी सरगर्मियों को मजबूत करने के लिए एक तकनीकी टीम अफगानिस्तान में तैनात कर दी थी। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा भारत के साथ करीबी ताल्लुकात इस्तवार करने के बारे में बहुत संजीदा है, क्योंकि भारत एक बढ़ती हुई इक़्तिसादी ताकतवर और अहम जोग्राफियाई सियासी खिलाड़ी है। लेकिन वो चाहता है कि हरदीप सिंह निज्जर कत्ल के बारे में मुकम्मल तहक़ीक़ात हासिल करने में नई दिल्ली ओटावा के साथ मिलकर काम करे। ब्रिटिश को कोलंबिया में 18 जून को अपने मुल्क के सरजमीन पर खालिस्तानी इंतहा पसंद निज्जर के कत्ल में भारतीय एजेंटों के मुमकिना मुलव्विस होने के ट्रूडो की धमाका खेज इल्जामात के बाद भारत और कनाडा के दरमियान कशीदगी फैल गई है। भारत ने 2020 में निज्जर को दहशतगर्द के तौर पर नामजद किया था। भारत ने नाराजगी जताते हुए सख्ती से उन इल्जामात को मुज़हका खेज करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था। अमरीकी भारत के खिलाफ उन मुअतबर इल्जामात की पैरवी में कनाडा के साथ है। उन्होंने मजीद कहा है कि हम अपने तमाम शराकतदारों के साथ कानून की हुक्मरानी में सोचे समझे जिम्मेदाराना अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, इसमें हुकूमत हिंद से हमारा नुक्ता नजरिया भी शामिल है। ट्रूडो ने पहली बार 18 सितंबर को हाउस में इन इल्जामात के बारे में अवामी तौर पर बात की थी। दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में नजमुद्दीन, मुश्ताक शेख,
سید بہادر نسیم احمد ندوی صاحبان نے اپنا قیمتی تبصرہ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ ہم اپنے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے اور ہمارے ساتھیوں سے ایکس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایکس ہینڈل ہے @فکر و نظر۔ شکریہ۔